Now remember what was 73, 74. 73, 74 are by nature reassessment provisions. Because you do self-assessment in section 59 and that is also an order. If you go to the definition of assessment, कभी किसी ने पढ़ी assessment की definition आज तक? नहीं, बस ऐसे करना आता है. Assessment includes self-assessment. So self-assessment is also an assessment order which can be appealed. Custom it is a billable order. आप bill of entry को change करवा सकते हो अगर आपने self-assess किया within limitation of course. Reassessment in all tax laws are conditional jurisdictions. These are not original jurisdictions. जो आप 61 से 64 तक assessment करवाते हो वो limited unlimited jurisdiction of assessing authority का inherent jurisdiction है. These jurisdictions are inherent but conditional. ये condition satisfy करो तो आप 73 का notice दे दो, 74 का notice दे दो. जो condition in section में लिखी गई हैं, only on those conditions these notices can be issued. There cannot be any other condition. वो कहता है tax short paid, he has to say how did you pay short paid. Tax not paid, how? Wrongful availment of ITC, how? Or refund erroneously given. ये चार reason है. 73 था without fraud. 73 was non-fraud, 74 was fraud. हमारे सेक्शन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में डेफिनेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. कस्टम और सर्विस टैक्स में सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की डेफिनेशन अलग थी. देयर इज नो वर्ड कोलूजन यूज्ड इन आवर लॉ. सर्विस टैक्स कस्टम एक्साइज में वर्ड कोलूजन था. तो जो जजमेंट या पुष्पांजलि वगैरह जजमेंट जो हम कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यू हैव टू से कि वो जजमेंट कौन सी क्लॉज के लिए लागू की गई थी. इफ इट इज द सेम फ्रेज व्हाट यू आर यूजिंग इन दिस जीएसटी लॉ, दैट जजमेंट मे बी रेलेवेंट बिकॉज दे वर आल्सो डीलिंग विद वैल्यू एडेड टैक्स लॉ. दिस इज आल्सो डीलिंग विद वैल्यू एडेड लॉ. सेम स्कीम. इनपुट वहां भी मिलता था, यहां भी मिलता है. राइट? When you deal with fraud or non-fraud cases, the difference is only of penalty and limitation. Earlier law, not 74A. सिर्फ पेनल्टी का फर्क और दोनों में कोई फर्क नहीं था, लिमिटेशन का फर्क था. अब लिमिटेशंस 74A में रिवर्स कर दी गई. फॉर केसेस फ्रॉडुलेंट कम है, नॉन फ्रॉडुलेंट लिमिटेशन ज्यादा है. So they want to do earlier fraud cases first quickly cancel out. Right? So once we say these are conditional jurisdictions, whenever you get a show cause notice, you have to first read this provision. Call your client, okay, do you fall in any of these categories? वो कहता है tax is short paid. How? मैंने जीएसटी रिमांड के कम टैक्स दिया, मैंने कोई टैक्स रेट गलत लगाया, मैंने कोई जीरो टैक्स दे दिया जहाँ टैक्स देना था. There have to be reasons. How is tax short paid? Tax not paid. You are treating something to be non-taxable. They say this taxable. That person has to give reasons how it is taxable. मैंने आपने non-taxable दिखाया, ये taxable under this law. That is we call material evidence to support a show cause notice. ITC wrongly availed. और वो लिखते हैं ये पार्टी से लिया, ये पार्टियां चोर हैं. This is no reason. There have to be reasons. How this kind of a culpability shifts to me. वो कहते हैं वो बंदा वहां नहीं पाया गया, तो then what? How does my ITC become wrong? सुप्रीम कोर्ट कहता है मेरा आरसी कैंसिल कर दो, but retrospectively you cannot deny me input as credit. Fourth, refund erroneously given. ये चारों चीजें आपकी नॉलेज में है. The proper officer may not bother about all this. तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना होता है in this kind of conditional jurisdictions कि you do not have jurisdiction for the following reasons.
You have not quantified, tax not paid, how? Not paid, how? IT is wrongfully violent, how? अब वो क्या करता है एडजुडिकेशन में, आप उसको छोड़ दो. इसके ऊपर जितनी जजमेंट्स आप निकाल सकते हो आपको निकाल के उसमें डाल दिया. Because this goes to the root of jurisdiction. Second, you have to see, was he a proper officer? Normally 291 के जो proper officer for these notices are where you take a GST registration number. Let us say under section 5(2), your jurisdiction is with the center. State officer cannot issue you notice. Central can issue you notice. The latest judgment AP High Court की today I will circulate it in the evening. तो आपको देखना है कि आपका jurisdiction सेंटर में था शुरू में या स्टेट में था. अब ये नहीं कि टैक्स नहीं लगना, सेंटर विल ट्रांसफर टू स्टेट, बस इतना फर्क पड़ेगा. बट इफ इट इज ऑन ए पॉइंट ऑफ लिमिटेशन, 2 महीने रहते हैं, 4 महीने रहते हैं, दिस ट्रांसफर मे नॉट एक्सटेंड लिमिटेशन. Limitation can be extended when there is a stay. This transfer of files is not a matter of stay. Even if there is a circular by government, it makes no sense. जैसे कल हमारे बार में कोई सर्कुलर निकाला उन्होंने कि ये उसके कमिश्नर से अप्रूवल से आप करोगे, तो मैंने लिखा कि you should object. What is this nonsense? Under what power they are doing it? Cancellation. वही और बात, हाँ जो भी था, मैंने करता नहीं, मुझे पता नहीं इस इशू का. मैं कहा जी क्यों आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसे सर्कुलर? भाई मैंने वो सर्कुलर ध्यान से देखा, उसमें कोई पावर का सोर्स नहीं था. कौन से रूल में ये उन्होंने बताया कि ये जेसी करेगा, डिस्ट्रिक्ट बेंच करेगा? क्यों करेगा भाई? इट्स अ प्रॉपर ऑफिसर जो जॉब. सो यू सी कि वेदर ही वाज अ प्रॉपर ऑफिसर. सर इसमें क्वेश्चन था सर, अगर हमारा जो सेक्शन 74 या 73 का एक टाइम बाइंग पीरियड होता है नोटिस इशू करने का, और सेकंड टाइम बाइंग होता है, मैं वही आ रहा हूँ, उस पर वही आ रहा हूँ. 73, 74 had 2 limitations. One is issue of notice, 3 months or 6 months before adjudication order. Then the limitation of adjudication order. The consequences are given in 75(10). If you have not done, the assessment proceedings await. सर मेरा क्वेश्चन कुछ और था. नोटिस भी 3 महीने में देना है. सर आपने जो चेंज ऑफ ऑफिसर कहा, प्रॉपर ऑफिसर स्टेट से वाला, लिमिटेशन विल रिमेन, लिमिटेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड. जब वो चेंज हो रहा है ना कुछ नहीं, उनकी हेडेक हमारी हेडेक नहीं है. फॉर द नॉन नेग्लिजेंस दे कांट टेक ए प्रीमियम. अब सर सेकेंडली एक और चीज़ आ गई कि इफ़ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इशूज SCM और उसके बाद उसमें जो उनका एंटी इवेजन टीम का जो असेसिंग अथॉरिटी है, नॉर्मली वो एडिशनल कमिश्नर होता है, द फाइल गेट ट्रांसफर टू द, उस पे भी आ रहे हैं, उस पे भी बनता नहीं. सो देयर आर 2 limitations. One is for issuance of notice. I'm talking of 74, 3 महीने 6 महीने था. तो अगर वो नोटिस आपको 2 महीने 28 दिन का आया है, the all proceedings are time barred. Because the adjudication is a consequence of notice having been issued. So both the limitations shall run concurrently. इस पर बोर्ड का सर्कुलर भी है इस पर्टिकुलर इशू पर, राइट. सो ये आपको देखना है कि ये नोटिस आपको टाइम पे दिया गया था या नहीं किया था. कैसे करेंगे? आपका केस कब टाइम बार हो रहा है, एनुअल रिटर्न से क्या करना है, जो भी आपको उसका एक चार्ट बना के उसको अपनी ऑर्डर में लिखिए कि आपका नोटिस ये भी टाइम बार है आपका, मैं आपको वी डोंट अप्लाई टू इट इस टाइम बार, लेट हिम डील विद इट. ऐसे केसेस में ऑलवेज मार्क कॉपी टू कमिश्नर. दे वर्क अंडर डेलीगेशन लेजिस्लेशन ऑफ द कमिश्नर. दे ऑथराइज हिम एज ए प्रॉपर ऑफिसर. हमेशा कमिश्नर को मार्क करो, कल को कोर्ट में बड़ी चीजें काम आती, राइट. सो दोनों लिमिटेशन है. अगर नोटिस टाइम पे इश्यू किया गया, एडजुडिकेशन टाइम पे नहीं किया गया, 1 दिन के बाद भी गेट्स टाइम बार. कुछ कोर्ट्स कहते हैं जी 1 दिन डिले हो गया डिस्पैच में, बट मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट से नो, द ऑर्डर शुड बी आउट ऑफ योर कंट्रोल बिफोर द लिमिटेशन एक्सपायर्स. It should be put in the course of communication. सुमनजीत अग्रवाल में बोला, सुमनजीत अग्रवाल में बोला गया. चलो हाई कोर्ट पढ़े, हाई कोर्ट तो मैं तो पढ़ते ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट तो बिल्कुल नहीं. सर इसमें से एक और चीज़ है, जो दोनों का टेन्योर है, नोटिस और जो मेरा ऑर्डर उसमें 6 मंथ्स का होता है,
3 महीने या 6 महीने, 3 महीने 73 में थे, 6 महीने 74 अब में थे। सर मेरा नोटिस इशू हुआ फर्स्ट किया सर 29 को से सितंबर, और मेरा ऑर्डर फ्रेम हो गया 12 मार्च को, तो 6 महीने से लैप्स नहीं हुए मेरे। तो उस सिचुएशन में जो नॉन कंप्लाइंस हो जाएगा हाँ। नहीं भाई, नॉन कंप्लायंस क्यों? सर, वो 6 महीने का जो मेरे को स्टेट्यूटरी पीरियड मिलना चाहिए कौन सा रिप्लाई देने के लिए, जो ऑर्डर 74 टाइम में 6 महीने में पास होना है 6 महीने में ऑर्डर पास करना है, विद इन 6 मंथ। ऑर्डर पास करना है, कोई टाइम बार हो जाएगा वरना। आपका क्या क्वेश्चन था? यू हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। सर मेरा ये था कि जैसे जो हमारी डेट और लिमिटेशन है डेट इज डिपेंडेंट अपॉन कि जैसे जो नोटिस है, आपकी डेट है एनुअल रिटर्न से लिंक्ड है। ठीक है सर, वो जैसे 31 मार्च था या 30 मार्च जो भी होगा, उससे मैं रिवर्स करूँगा 6 मंथ्स। नहीं, ऐसा नहीं है सर। का क्वेश्चन ये है, जैसे 19-20 का केस है, 30 सितंबर का टाइम बारिंग था नोटिस देने का, 31 मार्च को असेसमेंट करना था। सर ये कहना चाह रहे हैं, अगर मेरा नोटिस जून का है तो मेरे 6 महीने तो यहाँ पूरे होते नहीं नहीं, सितंबर का है, सितंबर का ही है, सितंबर डेट का नहीं, फर्क है। वो आपको देखना है कि पहला नोटिस आपको 3 महीने पहले इशू हुआ, he gets extended time to complete assessment. यस He has to complete assessment by that deadline. हाँ वहाँ टाइम बारिंग नहीं होता। ठीक है, अगर पहला नोटिस आपको 3 महीने से कम लिमिटेशन गया है, एवरीथिंग ये पॉइंट आपको शो का नोटिस में रिप्लाई लिखना है। यस विदाउट ड्यूरेशन। बोर्ड सर्कुलर ऐड कर दो, जजमेंट भी बहुत है इसके ऊपर, राइट। अनदर थिंग कम्स इज हु इश्यूज द शो का नोटिस। हम लोग डर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट कमिश्नर पर डरने की कोई बात नहीं। Nobody can be a judge in his own cause. Investigating agencies, अब तो हमारे मूड ट्रिब्यूनल की जजमेंट भी आ गई बाद में, अपनी माने थे बातों को, हाई कोर्ट ही मान गया आपकी जजमेंट। I had raised this appeal in our mood tribunal, in second mood tribunal, कि how can you be a judge in your own cause? आप तो बैठ के टाइम में भी करते रहे ये ऑब्जेक्शन। मैंने जीता भी था मेटल बॉक्स का केस ट्रिब्यूनल में, बहुत साल पहले मैंने केस किया था। किसी के कहने से आप बैठे हुए मैंने किया था, किसी ने आरसी कैंसिल कर दिया हमारा। मैं सीधा बागपुर से 30,000 ले गया, कहता ये क्या है? मैं कहा जी केस कमिश्नर का ऑर्डर है, मैं नीचे कहाँ जाऊंगा? पता है अपने गवर्नमेंट कौन सा बहुत पुराना केस है, तो ही है दिस इज इलीगल। आई थिंक रूल 94 ऐसा कुछ था उस टाइम, पता नहीं, मुझे याद नहीं। और उसमें भी ग्राउंड ये था कि इन्वेस्टिगेटिंग तो यू कांट डू इट, यू कांट बी जज इन योर ओन कॉज। सो अगर आप रिजीव कह रहे थे कि किसी ने सर्च किया, इन्वेस्टिगेशन किया, राइट, नॉट दैट ही कैन नॉट इश्यू ए शो कॉज नोटिस, अगर वो एम्पावर्ड है तो ही कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन शो कॉज नोटिस। सब वही बात आ गई कि ये जो आपने कहा कि अपना उसने इन्वेस्टिगेट किया और खुद ही शोकस नोटिस इशू ही कैन नॉट एडजुडिकेट। अब सर सेकंड प्रोसेस है, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। पहली चीज़ है एससीएन शुड बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो क्या वो तो पहले आपको देखना है बाजी प्रॉपर ऑफिसर, वो तो मैंने बोला ही शुड बी एम्पावर्ड। सर पहला स्टेप ये हो गया, क्या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या एंटी विजन का जो सुपरिटेंडेंट है इज ही है कॉम्पिटेंट प्रॉपर ऑफिसर? वो 291 में उसकी पावर होनी चाहिए। देयर इज नो बार, ही कैन बी। सर अभी जैसे हम हमारी बात आपने बताया कि ही शुड बी अ पर्सन हु इज ग्रांटेड विद रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर वो होगा। हाँ, तो जो इन्वेस्टिगेशन जो एडजुडिकेशन करेगा, शो कॉज नोटिस आपको डीजीजीएस या एडिशनल डायरेक्टर ने दिया, he is not a proper officer, he will not pass a demand recovery order. ठीक है सर। Order will be by you are proper officer, he'll transfer the case. अब सर उसके बाद अब वो transfer circular you can challenge, जो I am amenable to challenge that circular also, under what power can you transfer the cases? अब सर पर्सन जो फाइल है इट गेट ट्रांसफर टू मिस्टर एक्स, और जो मिस्टर एक्स है ही इज नॉट अवर प्रॉपर ऑफिसर, मीनिंग देयर पर जो जोनल ऑफिसर है द पर्सन हु हैज माय जुडिक्शनल पावर्स, अब वो मिस्टर एक्स को दे दिया गया बाय वर्च्यू ऑफ सम सर्कुलर एक्स वाई जो भी है उसके द्वारा वो वहाँ चला गया एंड ही मेक्स अ असेसमेंट ऑर्डर और मेरे पे टैक्स पेनल्टी वगैरह इम्पोज हो गए एज पर एससीएम। अब सर क्या उस ऑफिसर वो हम प्रॉपर ऑफिसर की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं? No, you challenge it. If he is not, he is not. नो सर Nobody can confer his jurisdiction onto himself. Your participation proceeding does not confer jurisdiction on the proper officer. He has to be proper. It goes to the root of the case. जीएसटी में जो You can challenge it.
अथॉरिटीज जो अपॉइंट होती है या तो स्टेट में तो गवर्नमेंट करती है और सेंटर में तो बोर्ड। Okay, let's go further. You can challenge it. Now, what does 74A does? From 24-25, we have 74A. There are two issues. Whether this amendment in 74 or limitation is a matter of procedure or substantive. If it is a substantive, then periods prior to 24-25 shall be governed by 73 and 74. You need not issue a notice in 74A for periods prior to up to 23-24. If we take, it's a substantive amendment. If the courts hold tomorrow, with cases already coming up, okay, if it is a assessment of procedure, then notices for these years also should be in 74A. But my personal view is this amendment is substantive, not procedural. But this is my view, not a final view. Now, when does it apply? Same, tax not paid, short paid, irregularly refunded, or ITC wrongly availed or utilized. Now, this availed or utilized, notwithstanding the circulars of government, किसका क्या मतलब है? ये रूल 14 सर्विस टैक्स में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था. I don't remember the name of the case. Where they say the word use the rule availed or utilized. So if you availed in the return, did not utilize, you still have to pay interest. This phrase has been continued in GST regime. Though under section 50 now they have issued amendment, still utilize or ITC जो झगड़ा है वो, but that does not clarify this position. Availed or utilized. इसका हमें ध्यान रखना है. Limitation period. The proper officer must issue a notice within 42 months. अब उसके फाइल कहाँ से आई, कहाँ ट्रैवल की, लंदन, बॉम्बे, जो मर्जी, टाइम उसके बाद 42 महीने है. अगर उसके पास फाइल ही 42nd मंथ और 2 दिन के बाद आती है, दिस प्रोसीडिंग द टाइम बार्ड. Unless the law gives a concession for this kind of transfer of files and time taken can be excluded, there is no such provision. Must issue a notice within 42 months from the due date of the annual return or the date of. अब ये बहुत ध्यान रखना है आपको. ये 2 लिमिटेशन है. For short paid, not paid, wrongful ITC, limitation is 42 months from date of annual return. Refund में annual return का word नहीं है. It is 42 months from date of refund. What is date of refund? When it is given in your bank. Refund order is not a date of refund. PMT6 is not a date of refund. When money comes into bank, that is taken to be next day from date of refund is the date of refund. General clause is that next day से हम limitation count करते हैं. तो जब भी आप ये नोटिस देखो, सबसे पहले आपको देखना आपको नोटिस किस चीज का है. इन्होंने रिफंड का है, लिमिटेशन क्या है, ध्यान रखना. ये किसी ने पढ़ा नहीं है आज तक. जब तक आप पढ़ना नहीं सीखोगे आप कानून नहीं सीख सकते. So remember, whenever you deal with limitation goes to the root of the cause. बहुत ध्यान से करना है आपको. Which is longer than so and so. अब सेक्शन 73 में कितना टाइम था आपके पास? 3 साल और 42 महीने. बट शॉर्टर देन सेक्शन 74 और 5 साल था 42 महीने. उल्टा पुल्टा कर दिया. स्टेटमेंट ऑफ अदर पीरियड सेम. अब जो स्टेटमेंट है साथ लगाते हैं अगले 2 सालों की, द इशू मस्ट बी सेम एज इन द शो कॉज नोटिस. Otherwise, those statements, if not pursued, will become time barred. The show cause notice will be deemed to be valid by enclosing statements if the issues raised on the enclosed statements are absolutely paramaterial to the original show cause notice. Tab they taken to be notice for all other years. Otherwise, no. Penalty structure. Non-fraud cases में इसमें penalty लगेगी. इसके बहुत सारे हालात हैं. I hope we had time to discuss this. 10% of tax due, 10,000 whichever is higher. आपने GST 1 में टैक्स नहीं दिया, उसको 3B में टैक्स में आपने कोई गड़बड़ कर दी.
इट्स ए नॉन फ्रॉड। एनी रीजन? आपने कोई गलत सी एंड डेबिट रजिस्टर कर दिए, इट्स ए नॉन फ्रॉड। आपने किसी कोर्ट की ओपिनियन में टैक्स जमा नहीं किया, यू आर एंटाइटल्ड टू फॉलो कोर्ट रूलिंग, दैट कोर्ट रूलिंग इज रिवर्स्ड, इट्स ए नॉन फ्रॉड। पेनल्टी इज नॉट वेट 10% और 10,000 whichever is higher. सर इसमें तो जब 74A आने से तो अफसर की पावर बढ़ गई, तो इसमें लगाऊं या आपको उसमें नुकसान है क्या? हमें तो फायदा ही बस तो फिर हमें अपने फायदा सोचे, हमें क्या लेने देना है? पर कड़ियलवाल सोचे क्या, उनको क्या पता है, जो मर्जी करते रहे। फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन पेनल्टी इक्वल टू द टैक्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? Can anybody who say कि how does fraud play in this 74A other than Mr. Bhatia? How does fraud interplay in this case? So remember, this is a reassessment. It's a conditional jurisdiction. Fraud has to come to light in jurisdictional proceedings, not original proceedings. Fraud should have come to light after the earlier proceedings were concluded. ये मेरा एक न्यूज़लेटर में आर्टिकल है, मैंने इसको बहुत पढ़ के बनाया था, तो मैंने सीखा था जी फ्रॉड केस का मतलब क्या है। फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम विलफुल मिसस्टेटमेंट। आपने जानबूझ के विलफुल मिसस्टेटमेंट किया। फॉर एग्जांपल, आपका ट्रांसपोर्ट एबीसी था, आपने बोल दिया XYZ है। आपकी पेमेंट स्किल वर्मा से आई थी, आपने बोला रेणु शर्मा ने मेरी पेमेंट की। दीज आर, मुझे पता है पेमेंट मुझे नहीं करने वाले, आई नो इट, पर सामने बैठी ये बोल दिया। So this is a willful misstatement. That is, if you are dealing with 74 cases involving fraud, this he has to prove that you have committed a fraud. Simply writing is not enough. Sanction per court कर दिया हो गया fraud. No. Then in your show cause notice reply, you have to write. If there is no statement, how is committed a fraud? For what? किस चीज का मैंने fraud किया? वो हम लोग जवाब नहीं देते क्योंकि हमें देना नहीं आता। If you mention the transaction that these are transactions which are fraudulent, you have to question it that these are not fraudulent transactions. There you quote Shanti Kiran or whatever the judgments that you have to quote, and then suppression. Suppression of facts. हमारे यहाँ बहुत बड़ी definition है. That definition is extremely damaging. जो information आपसे मांगी जाती है आपको देनी है. In any what is in any proceeding, section 70 में आपसे उसे मांगी, आपने नहीं दी, suppression of fact. वो 74 में आप पहुंच जाओगे, even though it could be a case of section 73. You fail to provide information as asked for by the proper officer. This is suppression of facts. Interest is payable under section 50 as usual. Now, what this law has changed? पहले दो नोटिस आते थे 74 में। Now 74 has given him power to reclassify the proceeding from 74 to 73. Why? In summary, I've given a summary. I've written an article on this, so I'm not quoting everything. वो paid article था, so I cannot give it here. 74A provides a uniform consolidated framework for GST, demand notices and penalties from 25, balancing compliance enforcement with the relief for non-fraudulent traders. अब वो कहते हैं जो read that the proper officer originally presumed fraudulent, जब notice किया वो कहता है fraudulent था like section 74, आदमी कहता नहीं है इसमें कोई evidence नहीं है. तो instead of getting an order under 75 too, that become osseous now, right? So he can himself reclassify at 73. Then you will be given an opportunity to file a reply for 73. ये हमेशा 74 से शुरू करेंगे, इनकी ज्यादा लिमिटेशन होगी, 73 में लाएंगे. So this is an easy thing. कि आप बताइए जी क्या फ्रॉड है, बताइए, आप नोटिस किया, आप सारे पेपर देते हैं, कहते हैं फ्रॉड करेंगे, 73 में करते हैं. एक चीज़ मेरे को आज तक समझ नहीं आई, जो वो डिपार्टमेंट वाले ये कहते हैं जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये तभी हमको पता लगा जब हमने ऑडिट किया या इंस्पेक्शन किया, और इस ऑडिट ना करते तो पकड़ में नहीं आना था, इसलिए हम आपके ऊपर 74 लगाते हैं, वी आर डन इट विद द इंटेंशन, और फिर सेक्शन 155 भी लिख देते हैं और कल्पेबल 135 भी लिख देते हैं.
सर 122 भी लगा देते हैं एक पॉइंट पे 74 पे बंद कर देते हैं वेकेंट नहीं नहीं, लेकिन इसका जब मैंने आपसे वो पूछा भी था, बट यू ये अब देखो आपकी लैंग्वेज क्या है। रीअसेसमेंट की लैंग्वेज यही होती है, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर फ्रॉम व्हाटएवर सोर्स, राइट। वो तो दे रीइंफोर्स द आर्गुमेंट, जब नहीं करते तो ये चोरी करके भाग जाता। फॉर सेक्शन 83 दैट फ्रेज इज वेरी एसेंशियल, because you have to safeguard the interest of revenue. They must write in 83 proceedings, they अगर नहीं करते हैं ये भाग जाएगा बंदा। That reinforces their section 83 order. वो तो जस्टिफाई करते हैं 74 हम क्यों लगा रहे हैं, But that doesn't mean that makes no difference. How does it make a difference to adjudication? लेकिन हम उसका जवाब क्या दें? नहीं, कोई जवाब नहीं इसका देना आपको। आपको तो कह रहे हैं कि आपका jurisdictional assumption गलत है। 74A he has a power for reclassifying from 74 to 73. So we will read the conclusion and maybe close. Under section 74A, the proper officer has the statutory authority to switch so and so, which we have discussed. Penalties. 74 में उसके पास कोई discretion नहीं है except the safeguard provided. 73 is same, also same. So penalties are non-negotiable in GST mechanism. Now there are two High Court judgments on maximum penalties. High Court said penalty cannot be reduced, because the law mandates so. What happens in Article 2 to 6? I don't think penalty can be reduced in 2 to 6 also. Sir, what is your opinion? हाँ जी, नहीं ना? Unless there is a पुरानी डिसीजन है जिसके अंदर कहा था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली मैक्सिमम पेनल्टी हिंदुस्तान स्टील वो उसमें था, लेकिन हमारे साथ प्रोविजन नहीं था। हमारे साथ प्रोविजन नहीं था। Circumstances will prevail. Under 226. पर वो जजमेंट बताइए जो कल आपने एक वो वो बताइए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 74 है। सर किसी केसेस में 74 में भी पेनल्टी लगा देते हैं, साथ में 122 भी लगा देते हैं। तो अच्छा, आपको दो केस मिल गए? नहीं तो दो में गलत है ना लगाना। तो 75 में लिखा when the case is penalty. There was a latest judgment where circulated video 2 days ago of Madras High Court, where an assessment was done post 24-25 under section 74. Maybe the fellow attended our DGST group lecture. कि 74A is a operation. He went to High Court from the lower proceedings. This is without jurisdiction. Now, why I want to say the judgment on two issues. If this was original proceedings, this would not have mattered. Because it's a conditional jurisdiction and notice is prescribed under 74A. The court said notice had to be issued in 74A, not in 74, because those sections has been obliterated from the statute book. For proceedings from 24-25 onward, those sections don't exist. Therefore, the whole proceedings were quashed by Madras High Court. With that direction, they remanded the matter to invoke 74A. उसमें limitation issue नहीं था. But since a court order, the time spent in court will be excluded for the purpose of 74A. Now the issue is, supposing you have a case here. मेरे वीडियो की इंपॉर्टेंस ये थी, आपने अपील करनी, 10% नोट रिक्वायर्ड अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस, गो टू कोर्ट स्ट्रेट, क्योंकि अपीलेट कोर्ट का अपील आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे विदाउट 10%. So file a two-day petition. This is illegal. But this is, there are 2-3 judgments which are a part of my PPT you will get, but after some time, not like this. कुछ दिन बाद मिलेगा, I have to still correct it. Can interest be waived? Absolutely no. Interest cannot be waived except unto the extent allowed in section 50 or section 128A if there is another scheme coming up like this. There is an old judgment regarding that. Birsa Namin state of Jamshedpur. Interest cannot be It waived. can't be waived. नहीं, एक्साइज में था कि इंटरेस्ट इज कंपनसेटरी इन नेचर. देयर आर सो मेनी प्रतिभा इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट केस इन एक्साइज, इंटरेस्ट इज कंपनसेटरी इन नेचर, काफी हैं. लेकिन यस, इन जीएसटी लॉ दोस काइंड ऑफ प्रोविजंस आर नॉट देयर. On whom the onus is? This is how you read 74A. Onus is upon the revenue officer to prove.
Once he level an allegation, the onus shifts upon you. If he simply say notice number 74 है कि आपने चोरी चकारी की है, there is no onus being discharged. When you say onus being discharged, means with backup of substantial material evidence. That is how you discharge an onus. So this is another issue we should read in PPT. ये कुछ judgments हैं. Jurisdiction, ये आपका issue है राजीव. इसमें CBC circular भी है. Jurisdiction, it is not inherent, it must be conferred. So 74 jurisdiction is only on 4 issues. And you have to be a proper officer under 291. Because proper officer is not defined in section 122 or here. Definition is 1. अगर यहाँ define किया होता तब उसको अलग से meaning करते, unless the context otherwise provides. So जो 291 की definition है, कोई भी commissioner government उससे बाहर नहीं निकल सकती. Canon में यही झगड़ा हुआ था. Is the DRI a proper officer? कोर्ट सेड नो. 39,000 करोड़ की डिमांड क्वाश कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में. उन्होंने फिर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की. वो अमेंडमेंट चैलेंज नहीं की, वो चैलेंज करनी चाहिए थी. पर जहां ऐसा कुछ नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर इज इन माय ओपिनियन जिसको आपका केस शुरू में कमिश्नरेट में दिया गया था, जिसने आपको रजिस्ट्रेशन किया था. हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, पर दिस इज द नॉर्मल. ये ओनर्स पे कुछ जजमेंट्स आप पढ़ लेना. सर रिसेंटली उन्होंने ये एरर जो है रेक्टिफाई भी कर लिया. अब जुडिशनल ऑफिसर जो है उसी के पास केस जा रहे हैं और जो मेरा नोडल ऑफिसर है वही केस कर रहा है. नहीं जा रहे सर, नहीं जा रहे. नहीं हो रहा, नहीं हो बड़े रहा. बदमाश नहीं हैं सर, ये अभी बड़े मेरे बदमाश जो रिसेंटली 3 केस थे, तीनों Sir, you are नोडल ऑफिसर ने lucky, you are कर lucky in लिए. finding. हैं. ये कन्वर्शन ऑफ नोटिस पे कुछ जजमेंट्स है 74A के ऊपर जो लेटेस्ट है, आप पढ़ लेना, मेरे कोई जरूरत नहीं है. ये रिक्वायरमेंट एस्टैब्लिश फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ये 2 जजमेंट्स बड़ी जरूरी हैं. आप इसको जरूर पढ़ना. गेटवे एग्जाम और स्टेट ऑफ गुजरात, इसी के बेस पे मैंने आपको अपना लेक्चर भी दिया. तो ये सारी चीजें आप उसको पढ़े. इन जजमेंट को पढ़ के आप अपने शो का नोटिस रिप्लाई बनाएंगे, ये फ्रॉड बनता है या नहीं बनता. इन अदर वर्ड्स, अगर आपको 74A का रिप्लाई देना है, आपको बिना पढ़े नहीं देना. अदरवाइज यू डूइंग ए फॉर्मेलिटी. 20 पेज लेके साइन करके दे दी, इट कट्स नो आइस. किसी भी आर्गुमेंट का लंबा होना इज नॉट ए सॉलिड आर्गुमेंट. You have to be briefest possible. So we will do conclusion. Judicial present. So I think we have done this. We need not bother about it. Practical. ये कर लिया हमने. This is Supreme Court, Rajiv, जो आपका सवाल था, has consistently affirmed that jurisdictional errors are amenable to direct challenge via writ petitions. अगर आपको लगता है कि आपका jurisdiction गलत assume किया गया, including on 74A conditions, अपील तो हो नहीं सकती. The authorities under statute cannot decide on jurisdiction. पर सर उसमें हाई कोर्ट उसको रिमांड करेगा या क्वेश करेगा? नहीं, ये भाई हाईकोर्ट क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये हमें क्या पता. सर अगर वो रिमांड ही करेगा तो यूजलेस है फिर तो, जैसे कि कर ही रहा है. 2 साल का कोई टाइम मिल जाएगा असेसमेंट करने. ये इसमें कुछ जजमेंट्स हैं 74A के ऊपर जो लेटेस्ट आई हुई हैं, वो मैंने इसमें दिए हैं आपको. अभी राहुल ने वो फिगर बट वी हैव डन ऑल दीस इश्यूज. अभी आपने Thank फिगर you. बताए थे, इतने में से